Hello everyone. Good morning. I welcome you in second last session of word problem linear equation. This is session number 6. In this session we are going to understand type 7 and last type, that is 8. Okay, here is 8 type. These are bit different questions. There is no specific type for these specific category for these two types. All are different. First type is geometry. There we are going to use geometric formulae and geometric properties to prepare the equation. That's it. That's why we are going to call it as geometry. Okay, but basically it's not a special category. But one thing is true, it is simpler than the other types that what we have seen. Speed, distance, and work done. It is more simpler than that. Okay, so let's understand one by one. The first one, the very first. The first equation or first question says that the area of rectangle gets reduced by 9 square unit if, whenever we have something like if, what you have to do is the second statement considered as a first and first statement considered as second. So if its length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit, the area of rectangle gets reduced by 9 square unit. This is how I can read. And the same thing if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area increases by 67. So it's very clear statement. What I understand, I have to find the dimensions of rectangle. So what I have to consider, length will be equal to x, and I can consider breadth as equals to y. If length is equals to x and breadth is equals to y, I can create the condition number 1. So if we have length and breadth as x and y, what will be area? So area is going to be equal to x into y, length into breadth. So this is what my length is, this is what my breadth is, and this is what my area is. This is original length, breadth, and area. Remember, original length, breadth, and area. Okay. Now what is happening? If length is reduced by 5 unit, so x minus 5 will be my new length. Okay. If you want, I'll just write new length. Oh. And breadth is increased by matlab new breadth is equals to x plus 3, right? Got it. So what will be new area? Okay, new area, length into breadth, that means x minus 5 into x plus 3. Okay, how is that area? Is the area of rectangle gets reduced by 9, so this is equals to the original area xy minus 9. It gets reduced by 9. Are you clear? Getting understanding? So this will be my equation. ये हो गया मेरा equation. I will simplify it. I'll just multiply y plus 3 होना चाहिए ना ये breadth. Okay, just a minute. It has gone something wrong here. Y here. Okay. Anyway, now I'll multiply. This is going to be xy plus 3x minus 5y minus 15 is equals to xy minus 9. Xy get cancelled and I get a proper and fine linear equation. 3x minus 5y is equals to 6, maybe. Minus 9 plus 15 is 6, right? This will be my equation number 1. Similarly, if you look at the second condition, you look at the second equation. So I'll just write that condition as well. So what is that? If length increased by 3 unit, matlab x plus 3, and breadth by 2, matlab it is also increasing, so y plus 2. So what happens? The area increases. Area matlab x into y increases plus 67 unit. It increases by 67. You can get the second equation as well. Do you think it's easy? Okay. Fine. Let's go for the next one. Okay, here it is. Length of a room, the same thing. Is about rectangle and area. Okay, so length will be x, as you said, x, and breadth is going to be y. Okay, if length increased by 3 meters and so area is going to be equal to xy. Okay ना. If length increased by 3, मतलब क्या हो रहा है x plus 3.
and breadth decrease by 2, y minus 2. If the length is increased by 3 and breadth is decreased by 2, the area remains same is equals to xy. Equation number 1. ये equation number 1 नहीं हो सकता. I have to simplify the equation, so I'll just simplify it. जैसे कि एक्स वाई माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई गेट कैंसिल माइनस 2x प्लस 3y is equals to 6. Equation number 1. Clear? But one equation is not sufficient. Find the length of the bed directly. Though, is there something wrong in the question? No. Look at the very first statement. Purposely, I did not read the first statement. Length of a room exceeds the breadth by 3 meter. तो ये हो गया मेरा सेकंड कंडीशन. ये है सेकंड कंडीशन. तो व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? लेंथ ऑफ अ रूम मतलब x एक्सिड्स मतलब इज मोर देन द ब्रेड्थ बाय 3 मीटर. तो इज मोर देन द ब्रेड्थ y प्लस 3. ओके, सो इट्स वेरी क्लियर x माइनस y is equals to 3, and that's equation number 2. I can use these two equations to get my equation solved or get my values. Okay, hope it is easy. Fine, I'll just erase this. नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं. इन ट्राइंगल ABC ये कुछ वियर्ड सम है, ठीक है ना. एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस B. इट मीन्स ऑल थ्री आर इन दिस मैनर इक्वल. तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको 3 एंगल से, तो लेट एंगल C बी इक्वल टू Z, B इज इक्वल टू Y and A is equals to X. I can write that. Okay, so isn't it these are the angles of a same triangle? So I have one more equation here which can be considered like x plus y plus z is equals to 180. है ना, ये भी एक इक्वेशन है. तो unless until you use this equation you cannot able to solve the question. Remember this. Okay, I'll just थोड़ा सा ही बड़ा करता हूँ and then we'll start solving the question. ये क्या हो गया? ओके, लेट्स सी हाउ कैन वी सॉल्व इट. तो हमारे पास दो इक्वेशंस तो ऑलरेडी पड़े हुए हैं. एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180. ये एक और एक इक्वेशन है. लेकिन आई नो दैट वी कैन नॉट सॉल्व दिस by directly using these two equations. No adding and no subtracting. In fact, let me tell you, this is not one equation. These are three equations. Means z is equals to 3y is one equation, 3y is equals to 2x plus 2y is another equation, and z is equals to 2x plus 2y is equals to another equation. So ये तीन equations है. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, एंड ये हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 एज इक्वेशन नंबर 3. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तीन इक्वेशंस है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड. मेरा टारगेट क्या है इन दिस इक्वेशन टू सॉल्व? दैट ब्रिंग दिस इक्वेशन, ये जो थर्ड वाला इक्वेशन है, ब्रिंग दिस इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट इन वन वेरिएबल. तो z इज इक्वल टू 3y, तो आई कैन राइट z एज 3y डायरेक्टली. y तो y में है. नाउ आई हैव टू ब्रिंग x इन y. ओके, तो x इन y यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया. 3y माइनस 2y इज y इज इक्वल टू 2x. तो वॉट इज x इज इक्वल टू y बाई 2. तो आई कैन पुट x इज इक्वल टू y बाई 2, zy इज इक्वल टू 3y इन दिस इक्वेशन. तो x इज इक्वल टू y बाई 2 प्लस y प्लस 3y is equals to 180. Okay, so I hope you understood what is to be done here in this case. Okay, bring everything in y. So y by 2 plus 2y by 2 plus 6y by 2 is equals to 180 degree, right? I can solve this equation easily. I get y. Once I get y, I can get z and x as well. So 2 can be shifted there. 6 plus 2, 8 plus 1, 9. 9y is equals to 360. Y is equals to 40. So it's very clear. Z is equals to 120 and x is equals to 20. Finished. That's it. The answer is done. Hope you get it and no difficulty here. Okay. Next one.
Find four angles of cyclic quadrilateral ABCD whose angle A is given, B is given, C is given, and D is given. Cyclic quadrilateral, you know the property. What is cyclic quadrilateral property? Here is ABCD. Opposite angles are supplementary, right? A is 2x minus 1. So what I know, angle A plus angle C is equals to 180. Angle A is 2x minus 1 plus angle C is 2y plus 15 is equals to 180. Can I get equation number 1 using this? And similarly, B plus D. B plus D is also going to give us another equation. Use those two equations and get it done. Clear? Easy. कुछ ज़्यादा difficult नहीं है. Okay. Fifth, maybe the last one. Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than बहुत कुछ है. Half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find dimensions of garden. ये थोड़ा सा इंग्लिश डिफिकल्ट है और कुछ नहीं. I'll just tell you what is it. ओके, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर. ये कंप्लीटली अलग स्टेटमेंट है, बस उसको मिक्स कर दिया उसमें. ओके, तो आई रिपीट, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर. ऐसे पढ़ते हैं हम लोग इसको. हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ. ठीक है, तो लेंथ एंड डायमेंशन पूछा है, तो लेंथ इज इक्वल टू एक्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई. है तो क्लियर सी बात है. हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? आई नो पेरीमीटर इज व्हाट, 2 इंटू एल प्लस बी, है ना. आई होप यू रिमेंबर, 2 इंटू एल प्लस बी इज पेरीमीटर. हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ मतलब क्या हो गया, डिवाइड बाय 2. सो इट इज गोइंग टू बी एल प्लस बी, है ना. हाफ द पेरीमीटर मतलब एल प्लस बी, ओनली एल प्लस बी. होप यू अंडरस्टैंड. तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 36. ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन. ईजी है, बस स्टेटमेंट अलग है. तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हो गया स्टेटमेंट. सेकेंड भी ईजी है. हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ. लेंथ का क्या मतलब होता है? एक्स इज मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर वाई प्लस 4 हो गया. एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया. फिनिश, दैट्स इट. इक्वेशन नंबर 2. Hope you are getting it. It's so simple. It's not difficult. Only that statement is a bit difficult. Okay. और कुछ नहीं है. English is difficult. Clear? Got the point? Okay. Next question को देखते हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है. बहुत टाइम, मैनी ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन हैज़ कम इन द पेपर्स. ये एक्चुअली इनफैक्ट मैं बोलूँ आपको, टाइप 8 के वियर्ड क्वेश्चंस है, अलग अलग कैटेगरी के, लेकिन है इजी. इट्स नॉट डिफिकल्ट. ओनली सम ट्रिक यू नीड टू नो एंड देन दैट्स इट. आंसर इज डन. ओके, लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज. यू स्कोर्ड 40 मार्क इन द टेस्ट. ओके, ही हैज स्कोर्ड कितना मार्क्स? 40. गेटिंग, वो टेस्ट कैसा था? गेटिंग 3 मार्क फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. वो टेस्ट ऐसा था कि 3 मार्क आपको मिलते इन केस इफ यू गिव द करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क आप लूज करते इफ यू गिव द रॉन्ग आंसर. दिस इज हाउ द टेस्ट वाज. हैड 4 मार्क बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. अगर इसका थोड़ा सा अलग करते हैं, 4 मार्क करेक्ट आंसर को देते हैं, 2 मार्क लेस करते इन केस इफ ही इज गिविंग रॉन्ग आंसर, देन ही वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स. 40 की जगह उसको 50 मिलते. तो फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. तो उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं. तो राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चन, राइट क्वेश्चंस इज इक्वल टू एक्स, ऐसे कंसिडर करते हैं. मतलब उसने डब्ल्यू हो गया क्या? ओके सॉरी, okay, right questions x and wrong attempted questions will be equal to x, will be equal to y, sorry, यहाँ पे हो जाएगा y. okay, I repeat again, उसने राइट सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस नंबर x होंगे एंड y
उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, ठीक है। जितने भी उसने राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 3, यहाँ पे देख लो 3 मिलने वाले। तो 3x प्लस प्लस होगा या माइनस होगा, बिकॉज ही इज गेटिंग 1 मार्क लेस फॉर रॉन्ग क्वेश्चन, सो माइनस एक्स माइनस वाई is equals to what he has scored total 14. Had 4 mark been awarded for each correct answer, कर तो करेक्ट आंसर जो राइट आंसर है उसके लिए उसको कितने मार्क मिले? 4 मार्क्स, सो 4x, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ये नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम ही है। एंड 2 मार्क इज रिड्यूस, तो -2y, ही वुड हैव स्कोर्ड हाउ मच? 50 मार्क्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन रेडी। ओके, दैट्स इट, दैट्स इट। इस इक्वेशन को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x -2y इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्शन मतलब ये माइनस ये प्लस ये माइनस किया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देख लो 30। तो x कितना हो गया? -30, सॉरी, x कितना हो गया? x इज 15, y भी मिल जाएगा। टोटल क्वेश्चंस कितने थे? तो उसने इन दोनों को ऐड करो था, टोटल क्वेश्चंस विल बी इक्वल टू x प्लस वाई। तो x फाइंड करके y फाइंड करके ऐड करो, यू गेट योर आंसर, टोटल क्वेश्चंस। क्लियर? Got it or no? Did you understand? Fine? Okay, आगे बढ़ते। ओके, ये दोनों भी एक जैसे क्वेश्चन है, सिंपल है, तीनों के तीनों सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। टैक्सी चार्ज एंड हाँ लास्ट 2 सिर्फ डिफिकल्ट है, बाकी सारे के सारे इजी है। चलो कम ऑन देखते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड फ्रॉम द मेस। ओके, एक फिक्स चार्ज अमाउंट है, तो ये क्लियर सी बात है, फिक्स इज एक्स, फिक्स चार्ज हो गया शुरू, फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स हो गया, एंड मंथली चार्ज कितना हो गया? वाई हो गया। ओके, फिक्स चार्ज कितना है? एक्स है, एंड मंथली चार्ज कितना है? वाई है। कमान आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट हैज टेकन फूड फॉर 20 days एंड ही हैज टू पे 1000 रुपीज। 20 days, फिक्स चार्ज तो फिक्स है एक्स, प्लस मंथली चार्ज मतलब डेली चार्ज है ना, मंथली चार्ज नहीं, वो डेली चार्ज है, सॉरी, आई जस्ट राइट डेली हियर, डेली चार्जेस कितना है? वाई है। हाँ, पर डे चार्ज कितना है? वाई है। तो कितने कितने दिन रुका है वो कितना दिन फूड लिया है उसने? 20, तो 20y इज इक्वल टू 1000 हो गया, दैट्स इट। एंड नेक्स्ट वन 26 डेज के लिए, तो x प्लस 26 डेज 26y इज इक्वल टू 1180, दैट्स इट। आगे मेरे 2 इक्वेशंस, मेरे राम लखन, मेरे करण अर्जुन। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, यू गेट योर आंसर x एंड y, फिनिश्ड। सो सिंपल, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। हाँ, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 3 दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए देर इज फिक्स चार्ज, तो यहाँ पे लिख देते फिक्स चार्ज, सेम कैटेगरी, थोड़ा सा अलग है बस। फॉर 3 days इज इक्वल टू एक्स, एंड देर आफ्टर सम चार्ज पर डे। ओके, सो पर डे चार्ज इज इक्वल टू वाई, पर डे है ये 3 दिन के लिए कॉमन है, लेकिन ये पर डे के लिए। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर 7 days, तो सरिता ने कितने दिन रखा बुक? 7 days, उसमें से 3 दिन एंड 4 दिन, 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, और इसके लिए क्या है? वाई है। ओके, तो 3 दिन के लिए जो है फिक्स वो तो एक्स हो जाएगा, प्लस वाई मतलब 4y इज इक्वल टू 27। समझ में आता है कि देख लो, ये 3 दिन के लिए, ये रिमेनिंग 4 दिन के लिए, एंड टोटल उसने कितने पे किए? 27, इजी कॉन्सेप्ट। वाइल सुशी पेड 21 फॉर 5 days, 5 दिन, 5 दिन में से 3 दिन के लिए तो एक्स ही है, बचे कितने? 2 दिन, 2 दिन के लिए वाई, 2y इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। ये आ गए मेरे करण अर्जुन, यू कैन सॉल्व इट। इट्स सो सिंपल कॉन्सेप्ट, सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट बिग डील। ओके, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट। कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल इज ₹35। अरे सिंपल सी बात है, तो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज एक्स एंड 1 एप्पल इज वाई। ओके, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35। ये बहुत ही सिंपल। 2 ऑरेंज 2x
प्लस 4y इज इक्वल टू 28। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर, गॉट इट, तो इजी है ना। नेक्स्ट वन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। रेशो है, ओके, इनकम, ओके। तो हम लोग रेशो को नंबर्स में कब कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय टेकिंग कॉमन मल्टीपल। सो कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस रेशो 9:7 इज x। तो पहले वाले का इनकम है 9x एंड दूसरे वाले का इनकम है 7x। देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इसका जो कॉमन मल्टीपल है दैट आई एम गोइंग टू टेक इट y। तो एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट वन इज 4y एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड वन इज 3y। ये बात समझ में आ गई ना। दोनों के रेशियो के हिसाब से वी हैव टेकन व्हाट कॉमन मल्टीपल। इज इजी। ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ। तो देख लो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू बी योर सेविंग्स। सो 9x minus 4y is equal to 2000 and 7x minus 3y is also equal to 2000. ये आ गया मेरा इक्वेशन। दैट्स इट। सो सिंपल, सो वेरी सिंपल। ओके, टैक्सी चार्जेस इज सेम लाइक योर दैट फूड चार्ज, मेस वाला चार्ज। फाइन, तो आपको यहाँ तक आज कंप्लीट करना है। लास्ट के दो क्वेश्चंस विल डिस्कस लेटर ऑन। आपको यहाँ तक कंप्लीट कर देना है आज के आज। ओके, तो क्या क्या कंप्लीट करना है, आई विल जस्ट टेल यू। टाइप 7 कंप्लीट एंड टाइप 8 एक्सेप्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस। एवरीथिंग यू हैव टू कंप्लीट टुडे। सो हियर इट एंड्स द टॉपिक इटसेल्फ। आपका जो वर्ड प्रॉब्लम है दैट एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। When we actually start the class, that time we'll discuss still more difficult sums. So I have kept some sums pending so that I can teach you at that time. Right now, these are easy things, you have to get it done. Okay, still if you have got doubt, you can wait till I send the solutions. Through the solutions again things will be more clear. Okay, clear to everyone? Okay, thank you so much. Bye bye, see you tomorrow.